हाँ जी, प्रेज़ गॉड। खुदा उनका शुक्र हो आज के कलाम के लिए, खुदा उनका हम शुक्र करते हैं जो खुदा हमसे बोलने को है। हमारा ईमान है कि खुदा यहाँ हम सब में मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। आज खुदा उतरा हुआ है मुझे और आपको आज़ाद करने के लिए, बहाल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारे अंदर जो खुदावंद का पाक रूह काम कर रहा है, खुदावंद हमें गाइड कर रहा है कि गाइड करे कि क्या अभी खुदावंद हमारे अंदर से वो बातें, वो गलत काम या गलत रवैये हैं हमारे अंदर जो हमें निकालने हैं। खुदावंद एक-एक के साथ हम हमारे साथ बात करे और खुदावंद हमें पाक और साफ करे। आज खुदावंद का कलाम जो खुदावंद हमसे बोले, हम सब खुदावंद के इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें और खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करे। हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे देते हैं और खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं खुदावंद पाक रूह के कि खुदावंद का आज कलाम का बीज जब बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेके आए। ये ज़मीन पे गिरने ना पाए, ये हमारे दिलों में, हमारे दिल की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर गिरे और वो फल लेके आए, 100 गुना फल लेके आए। खुदावंद का आज का कलाम ज़ाया ना हो, वो असर दिखा के रहे हमारी ज़िंदगियों में। हालेलुया! खुदावंद का कलाम आज जब बोला जाए, तो वो हमारी ज़िंदगियों से तब्दील हो जाए। हम पहले जैसे ना रहें। हम अपने बदनों को खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं। खुदावंद इन बदनों को ले और अपनी मर्ज़ी को, अपनी कामिल मर्ज़ी को पूरा करे। जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में खुदावंद बाप की कामिल मर्ज़ी पूरी हुई थी। हालेलुया! इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद आज मुझे और आपको नया ज़ोर, नई ताकत देने के लिए, पुरानी इंसानियत हमारे अंदर से निकालने के लिए, हमें नया मसा, नया ज़ोर देने के लिए उतरा है। इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं और खुदावंद के हाथों में अपने आप को देते हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें इकट्ठा किया है कि हम पहले जैसे न रहें, साडे अंदरों गंद निकले। हम हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जी, हम पढ़ेंगे जी अंजना जी, द प्रेज़ लॉर्ड। लॉर्ड। हमने मेरा ख़्याल 14 आयत तक 13 आयत, हाँ जी, थैंक यू। तो मेरा ख़्याल 14 आयत तक हमने थोड़ा सीखा था। आज हम आगे की जो आयतें हैं, वो पढ़ेंगे। आप 14 आयत से पढ़ें आखिर तक। जी। जी, प्रेज़। ਪਰ ਮੈਂ हे ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿਆਓ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਲੁਕਰਨ ਤੀਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਿਸਪਾਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਕੇਦੋਨੀਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿਆਉਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਉਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਸੋਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਹਿਸਪਾਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਤ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗਵਾਹੀ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 9 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਹਿਚਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਚਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। प्रेज गॉड हालेलुया। Praise प्रेज the Lord. गॉड Hallelujah. Amen. हालेलुया। प्रेज गॉड। छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। Praise the खुदावंद Lord. हम Hallelujah. खुदावंद हमारे खुदा को इज्जत और जलाल मिले। हमारा खुदा मौत से करने वाला, करमात करने वाला खुदा है, शिफा देने वाला खुदा है। हालेलुया। बस हम ईमान रखें अपने खुदावंद पे। तो खुदावंद आपने क्योंकि दिल में ये रखा कि मैंने बाइबल रीडिंग करनी है। कई दफा होता है कि हमारा मकसद शिफा का या वो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद से मांगा, तो खुदावंद जो है वो उतर आया। हालेलुया। खुदावंद ने आपके गले को आपकी, और मुझे पता है मुझे भी कई दफा लग जाती है हिचकी, ये तो जल्दी ठीक नहीं होती, पर खुदावंद ने अपने नाम को ऊंचा करना था, जलाल देना था। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने आपको शिफा दी। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद की तारीफ हो। प्रेज गॉड। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं अंजना के लिए, खुदावंद आपके ईमान को और हम सब के ईमान को भी, जिन्होंने भी खुदावंद की ये जलाली काम को सुना है, हम सब का भी ईमान और ज्यादा खुदावंद पे मजबूत हो। प्रेज गॉड। जी हमने इस चैप्टर के 15 चैप्टर, रोमियो 15 बाब, हमने तकरीबन 14 आयत तक थोड़ी सी बात की थी कि खुदावंद ने कहा था, खुदावंद के बंदा ने कहा था कि हम जो पहले मसीह में आए हुए हैं वो क्या है, वो जोर आवर है। हालेलुया। तो हम जो कमजोर ईमान वाले आते हैं गैर कौमों से जब, तो उनको अपने में शामिल कर लें। खुदावंद के बंदा ने हमें बताया था 7 आयत में कि जिस तरह मसीह ने
ہمیں شامل کر لیا ہے اپنے میں، اسی طرح ہم بھی جو کمزور ایمان والے ہیں یا جو نئے نئے مسیح میں آتے ہیں ان کو اپنے میں شامل کر لیں، ہے نا؟ کیونکہ میں اور آپ بھی جب آئے تھے مسیح میں تو تب تو زوراور نہیں تھے ہم، ہے نا؟ تو آہستہ آہستہ جیسے ہم خداوند میں بڑھتے گئے، خداوند کے کلام پہ عمل کرتے گئے، جس طرح اب جیسے یہ کہہ لیں کہ انجنا کا ایمان جو ہے خداوند پہ بڑھا، ہم نے سنا تو ہمارا بھی ایمان خداوند کے اوپر بڑھ گیا کہ خداوند شفا دے سکتا ہے، چند سیکنڈ میں بھی دے سکتا ہے نا؟ تو اس طرح ہم زوراور بنتے گئے۔ تو اسی طرح اگر ہم جو نئے آنے والے ہیں، خدا ان کے بندہ پالوس رسول نے کہا کہ ہم ان کو اپنے میں شامل کر لیں تاکہ وہ بھی زوراور ہو جائے، ہے نا؟ اور پھر آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ اس کو خداوند نے غیر قوموں کے لیے چنا اور کاہن کے طور پہ چنا، ہم اس کو جیسے کہہ سکتے ہیں پاسٹر، خادم خداوند کا، ہے نا؟ اور خداوند نے اس کو غیر قوموں کے لیے چنا، ہے نا؟ اور کہ وہ ان میں منادی کرے اور وہاں سے روحیں جو ہیں خداوند کے لیے بچائے۔ اور یہ ہمیں اس کا جو ایک قسم کا کہہ لیں جو حوالہ ملتا ہے وہ اعمال 13 باب 2 13 باب اور اس کی 2 آیت میں ملتا ہے کہ خداوند کے بندہ کو غیر قوموں نے خداوند یسوع مسیح جب اس کو نظر آیا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو چنا تھا اور پاک روح نے بھی چنا تھا۔ اعمال 13 باب اس کی 2 آیت میں جی ہم پڑھیں گے، اور پھر اعمال 26 باب اس کی 17 اور 18 آیت میں بھی یعنی واضح پالوس رسول کو خداوند نے غیر قوموں کے لیے چنا تھا۔ جی 13 ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਾਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। हाँ जी यानी साउल उसका नाम था, लेकिन बाद में उसका नाम पालूस रसूल हुआ, है ना? तो इसलिए साउल को खुदा ने उस पाक रूह ने, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस काम के लिए अलग किया। यहाँ पे लिखा है कि उस काम के लिए जिसके लिए वो चुना गया है ना? यानी पाक रूह ने भी उसको मखसूस किया या उसको चुना और मसा किया। इसी तरह अमाल 26 बाब उसकी 17 और 18 आयत में हम पढ़ते हैं ਜੀ कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਵਿਰਸਾ ਪਾਉਣ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, खुदावंद ने उसको गैर कौमों के लिए, और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूं। खुदावंद ने इस साथ ये भी वादा किया था कि मैं तुझे बचाता रहूंगा, और गैर कौमों के लिए खुदावंद ने उसको चुना था। आगे भी पढ़ना मेरा ख्याल है, थोड़ा सा आगे। ਜੀ तो हे ਰਾਜਾ ਅਗਰੀਪਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। हाँ जी, यानी पराई कौमों यानी गैर कौमों में ਹਾਂਜੀ खुदावंद के बंदा को खुदावंद ने चुना था कि वो तौबा करें और खुदावंद की तरफ रुजू लेके आए। और एक और हवाला में हम देखते हैं कि वहां पे और ज्यादा वाजिया है, गलतियों 2 बाब उसकी 7 और 8 आयत में
पढ़ना कि पालूस जी। रसूल जो है वो गैर कौमों के लिए चुना गया था, और जो पतरस है अ, वो मख्तूनों के लिए चुना गया था। गलतियों 2 बाब उसकी 7 और 8। हाँ जी। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਅਸੁਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਪਤਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। तो यहाँ पे और ज़्यादा वाज़िह एक किस्म का है कि खुदावंद ने पालूस रसूल को गैर कौमों के लिए चुना और पतरस को मख्तूनों के लिए, यानी जैसे कह लें कि हम कह सकते हैं कि यहूदी जो कौम थी, उनके लिए चुना। और पालूस रसूल अ, को जो अपनी यानी यहूदी, जैसे ये रोमियो में हमने पढ़ा कि उसको अपने जो कौम है उसके लिए भी बड़ा दर्द था, और लेकिन वो उसका ज़्यादा जैसे कह लें कि बोझ जो था, मेरा ख्याल हमने 11 में 9 और 10 में है चैप्टर में देखा था कि पालूस रसूल के अंदर अपनी यहूदी कौम के लिए भी बड़ा दर्द था, है ना? लेकिन खुदावंद ने उसको चुना था गैर कौमों के लिए, कि वो गैर कौमों में जाए, मनादी करे। जिस तरह वो कहता है कि उसने खुशखबरी की पूरी मनादी जो है वो यरूशलेम से लेकर यानी चारों तरफ जो है वो की है, और पूरी मनादी की है। जो कुछ खुदावंद ने उसको बताया या सिखाया, या खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उसने पूरी उसमें कोई मिलावट नहीं की, उसमें अपने से कुछ नहीं मिलाया या कुछ छुपाया नहीं, है ना? तो खुदावंद के बंदा ने अम, और उसको ये वाज़िया पता था कि मुझे गैर कौमों के लिए चुना गया है ना? इसलिए मुझे और आपको भी मेरी क्या खिदमत है, मुझे खुदा ने किस लिए चुना है, किस क्योंकि जो भी मसीह में आया है, कोई भी है, उसके ज़िम्मे खुदावंद ने कोई ना कोई काम जो है वो लगाया है। उसकी एक तो हम सब काहिन हैं, ये जो अभी हम आगे इसमें थोड़ी बात करते हैं कि हम सभी क्या हैं जो मसीह में आ गए हैं, क्योंकि एफसियों के खत में लिखा है कि हम क्या हैं, परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मसीह के घराने के हो गए हैं, रसूलों और नबियों की नींव पे रखे गए हैं, यानी उनकी बुनियाद पे। फिर मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है कि सभी काहिन हैं। जो भी मसीह में आ गया है, अब वो क्या है, वो काहिन है, यानी खुदा का खादम है। सब ही का काम है कुछ ना कुछ, कोई भी वेला नहीं आ रह सकता। जब मसीह में आ गया उसने कुछ ना कुछ करना है, रूहें बचानी है, या सिखाना है, जैसे उस्ताद हैं, पास्टर हैं, है ना? कोई ना कोई हमारी खिदमत है, कोई ना कोई हमारा काम है जब मसीह में आ गए। और एक जगह वो लिखा है कि हमें खुदावंद ने भेजा है जमीन पे नेक और पाक काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए कोई भी जब मसीह में आ गया है तो वो फ्री ना बैठा करे, सुस्ती और कायली हमारे अंदर ना हो। कोई ना कोई जो भी खिदमत है, आपकी बाहर अभी कोई भी खिदमत नहीं शुरू हुई तो सबसे पहले हमारी क्या खिदमत है घर में, जैसे पौलुस रसूल का भी अभी हमने क्या पढ़ा कि पहले उसने यहूदिया से या यरूशलेम से उसने खिदमत जो थी वो शुरू की थी, है ना? तो इसलिए हम भी पहले अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, या अपनी बीवी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। ये हमारी खिदमत है, ये हमारी जैसे कह ले रोया है कि पहले हमने इनके लिए दुआ करनी है, रोजे रखने हैं। जिस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पालूस रसूल है वो कहता है कि जाँ फिशानी से दुआएं करें अपने खादम के लिए। जैसे हमारे घर में कौन खुदा का खादम है या काहिन है, हमारा बाप है या हमारा शौहर है ना? हमने उनके लिए दुआएं करनी है। ये जो आखिरी इसमें आयत है ना, कि वो पालूस रसूल क्या कहता है कि मेरे लिए दुआ करो।
تو بالکل उसी तरह हमारे घर में जैसे हमारा एक जो कह लें खुदा का खादम है या काहिन है, वो कौन है, हमारा बाप है या हमारा शौहर है। तो उसके लिए हमने जाँफ़शानी से दुआ करनी है। जाँफ़शानी का क्या मतलब है कि ज़ोर मारना है। जिस तरह हम देखते हैं कि अ, जो याकूब था, उसने बरकत पाने के लिए लड़ाई की थी, ज़ोर आज़माई की थी, वहाँ पे लिखा है ना, कि उसने बरकत पाने के लिए। आज अगर हम बरकत पाना चाहते हैं, तो खुदा के खादमों के लिए दुआ करना मेरे और आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो पहले हम घर से ही शुरू करेंगे, है ना? हम अपने बाप के लिए, अपने शौहर के लिए, ताकि खुदावंद उनको हिकमत दे, खुदावंद उनको ये हमारे घर का जो सारा निज़ाम है, या जैसे उस दिन मैंने बताया कि जब भी कोई मसा आता है, तो वो पहले हमारे पास्टर के ऊपर आता है, फिर हमारे अंदर एक किस्म का कह लें वो उंडेला जाता है, हम सब जो कलीसिया होती हैं। तो इसी तरह हमारे घर में जो हमारा बाप है या हमारी माँ है, अगर किसी का बाप नहीं है या शौहर नहीं है, तो माँ लीड करिए, वो भी मसीह में नहीं आए, तो कोई बात नहीं। माँ जो है, क्योंकि हम सभी काहिन हैं, उसमें कोई औरत या मर्द नहीं है ना? एक खुदा की हम खादमाएँ हैं या खुदा के खादम हैं, हमारे जो शौहर है या बाप है। तो आप जो भी आ गई हैं या बेटी हैं, अभी आपके माँ-बाप मसीह में नहीं आए, तो हम सब क्या हैं, अपने जो घर के सरबराह हैं या खुदा के खादम हैं या काहिन हैं, उनके लिए हम जाँफ़शानी से ज़ोर लगा के एक किस्म का दुआ करते रहें, और उसकी बरकत जो है मुझे और आपको मिलेगी। हालेलुया! और हमारी इस वक़्त अगर आप बाहर कहीं पे भी आपकी कोई खिदमत नहीं है, अभी शुरू हुई, आप अभी-अभी जैसे कल मसीह में आए हैं, तो हमारी जो खिदमत है या हमारी रूहें जो बचानी है, वो कौन है? हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारा शौहर है या हमारे बहन-भाई हैं। तो इसलिए कोई भी जो आ गया है मसीह में, कोई भी वेला ना बवे, कोई भी फारिग ना बैठे, उसकी खिदमत घर से ही शुरू होती है। तो हम उनके लिए क्या करें? दुआएँ करें, रोज़े रखें। मुझे याद है जैसे जब हमें थोड़ी-सी समझ लगी थी, रोज़ा रखना है, दुआ करनी है, और मैं और श्रेया अम, ये जो सेड्रिक है, इसके लिए हम किया करते थे, दुआ किया करते थे, रोज़े रखा करते थे, और जावेद के लिए। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने हमारी दुआओं का जवाब जो है वो दिया है। आज ये मैं कहूँगी कि खुदा के बड़े सुरमा हैं, और खुदावंद इनको अपनी-अपनी जगह, अपने-अपने जैसे जो भी हल्का है, खुदावंद इनको बड़े ज़ोर से इस्तेमाल कर रहे है ना? सेड्रिक की ज़िंदगी को हम देखते हैं कि खुदावंद उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, वो अपने बच्चों के, अपनी बीवी को लेके किस तरफ चल रहा है, या नए यरूशलेम की तरफ वो चल रहा है ना? और एक फैमिली मिलकर खुदावंद की तरफ बढ़ रही है। वो एक जैसे कह लें रूम में बंधे हुए हैं, और इसी तरह हम जावेद को देखते हैं। और मैं कहूँगी कि आज मेरी और सुरैया की दुआओं का जवाब है कि आज खुदावंद उसको बड़ी कुदरत से इस्तेमाल कर रहा है ना? तो अगर आप भी अपने-अपने भाइयों के लिए, बहन या माँ-बाप के लिए या अपने शौहर के लिए दुआओं में ठहरेंगी, तो कल आप उसके जो एक किस्म का कह लें रिजल्ट है, वो देखेंगे। अपनी दुआएँ जो हैं उनको पूरा होते देखेंगे, कि आपके बाप जो हैं या आपके शौहर जो हैं, खुदावंद उनको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया! या अपने-अपने लिए। तो इसलिए खुदावंद का खादम यहाँ पे पौलुस रसूल हमें बता रहा है कि उसको एक तो ये पता है कि मेरी ये खिदमत है। मैंने गैर कौमों में मेरी खिदमत है, और मैंने उनमें मनादी जो है वो करनी है ना? दूसरा इसमें एक और बात जो है वो मुझे और आपको समझ लग रही है, कि वो खुदावंद का बंदा कह रहा है कि कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रूल कुद्दस से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाए। यानी जब हम कोई रूह बचाते हैं,
हमारे जैसे जो खुदाम की खुशखबरी की हम मनादी कर रहे हैं, फजल की मनादी कर रहे हैं, निजात की जो है मनादी कर रहे हैं, तो उससे जो रूह बचती है वो खुदावंद के लिए हम नजर के तौर पे चढ़ाते हैं। हम सब जो काहिन हैं, यानी मुकाशवा की किताब में हम पढ़ते हैं कि हम क्या हैं, हम सब काहिन हैं। तो हम जो नजरें चढ़ा रहे हैं, जो कुर्बानियां हैं, वो क्या है? ये जो हम रूहें बचा रहे हैं, ये जो हम जिनको खुदावंद के पास लेके आने का बाइस बन रहे हैं, मैं और आप, वो जो रूहें हैं वो खुदावंद के लिए क्या है? वो हदिया है, वो नजरें हैं, वो कुर्बानियां हैं। हालेलुया। और खुदावंद को ये बड़ी पसंद है, खुदावंद की ये पसंदीदा है। हम सब पता है, हम सब जानते हैं ना कि जब कोई रूह तौबा करती है, मसीह को कबूल करती है, तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है, फरिश्ते खुश होते हैं और खुशी करते हैं। या पानी का बपतिस्मा हम जब लेते हैं जमीन पे, तो फरिश्ते आसमान पे खुशियां मनाते हैं कि एक रूह जो है वो बच गई है। और खुदावंद के लिए ये पसंदीदा है, ये जो हम काम करते हैं, रूहें बचाते हैं, ये खुदावंद की नजर में क्या है? मकबूले नजर है, यानी खुदावंद को ये पसंद है। खुदावंद को ये इसकी जैसे जब हम ये कुर्बानियां चढ़ाते हैं तो खुदावंद को इसकी खुशबू जो है वो पसंद है। जैसे हम दुआ में कहते हैं ना कि हमारी नजरें या हमारी दुआएं बखूर की मानद खुदावंद की हजूरी में पहुंचे। तो ये जब हम रूहें बचाते हैं और खुदावंद पाक रूह के ज़रिए से ये कह लें मुक़द्दस हो रही हैं, पाक हो रही हैं, है ना? तो ये खुदावंद को बहुत पसंद है। इसलिए ये काम जो है मैं अपने लिए नहीं कर रही या आप अपने लिए नहीं करते जब रूहें बचाते हैं। यानी आप अपने बच्चों के लिए फ़र्ज़ करें दुआएँ करते हैं, या आपका हस्बैंड अभी खुदावंद में नहीं है, या आपके माँ-बाप अभी खुदावंद में नहीं आए, तो ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये खुदावंद को पसंद है ना? तो हम ये कुर्बानियाँ या नज़रें जो हैं खुदावंद के लिए चढ़ा रहे हैं और खुदावंद को इन से कह लें एक तस्कीन मिल रही है, खुदावंद को एक तसल्ली मिल रही है, खुदावंद इनसे खुश होता है। ये जो कुर्बानियाँ हम चढ़ाते हैं, इसलिए ये जो रूहें बचाना है, ये सिर्फ जो इवेंजलिज्म करते हैं, ये सारा सब उन्हीं का काम नहीं है, हम सब का काम है कहीं न कहीं पे। लेकिन ये जैसे मैं कहूँगी कि थोड़े-थोड़े तरीके फ़र्क है। कुछ जो हैं जैसे बाहर जाके रोड पे जैसे जावेद करता है ना? वो रूहें बचा रहा है, वो मनादी कर रहा है। लेकिन हम जो हैं कुछ जो बाहर नहीं जाते, वो उनके लिए दुआएँ हम कर सकते हैं। या जो रूहें अभी मुझे मिली हैं या जैसे घर में हैं, जैसे अमनदीप है, अ, जो बाहर नहीं जाते, है ना? जो बाहर अभी घर को में जाके नहीं करते। सिस्टर माया है, अंजना है, सिस्टर महेंद्र, श्रेया तो खैर बाहर भी कर रही है ना? सुशीला और सिस्टर नीलमहन। अभी हम जो बाहर नहीं जा सकते, वो घर में क्या करें? दुआएँ करें। जो भी रूहें आपको दी हैं खुदावंद ने घर में रहते हुए, कोई भी आपका जो अभी मसीह में नहीं आया है, जो जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, या फिर जो अभी पूरे तौर से खुदावंद के साथ नहीं चल रहा, क्योंकि एक जगह वो कहाँ पे लिखा है कि हम इस निजात के काम को करते रहें। यानी ये नहीं है कि एक दफा जो मसीह में आ गया उसको अब निजात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब भी कोई गुनाह करेगा, कोई ऐसा गलत काम करेगा, तो मुसलसल ये निजात का, मुक्ति का, खलासी का जो प्रोसेस है, वो चल रहा है। एक दफ़ा तो खुदा के उसमें हम आ जाते हैं, मसीह को कबूल कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस है या ये मुसलसल हमें निजात की ज़रूरत होती है। तो वो जो है प्रोसेस, वो आगे खुदा के खादम जैसे उस्ताद हैं या पास्टर जो हैं, जो मुसलसल जैसे कह लें हमें सिखाते हैं कि अगर ये करोगे तो निजात जो है वो छिन सकती है। या यानी वो मसीह में आके अभी तक जो गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार है, अभी तक वो हरामकारी में या ज़नाकारी में या नशे में, या अभी तक वो उसके अंदर
नफरत है और जेलसी है, या तो ये हमसे हमारी निजात जो है वो छीन सकती है ना। या गालियां निकाल रहे हैं, या अभी तक हमारे अंदर चोरी है या बदगोइयां हैं, या इस तरह के ये नहीं, ये दाग, ये धब्बे या गुनाह जो हैं अगर हमारी जिंदगी में हैं तो हमसे निजात जो है वो छिन सकती है। अभी तक हम दिल में हमारे बदी है दूसरों के लिए। तो ये सारी वो बातें हैं, ये यानी कलाम के जो फिर आगे गहरे भेद हैं या मुकाशवे हैं, वो हमारे खुदा के खादम जो हैं यानी पास्टर जो हैं, उस्ताद जो हैं, वो खोल रहे हैं या वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इसलिए सारे ही अपनी अपनी जगह जो है वो काम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए खुदावंद का बंदा यहाँ पे मुझे यानी हम सबको बता रहा है कि ये काहिन का काम है। ये हम सब जो मसीह में काहिन हैं कि हम खुद भी बचें, और अब अगर हम बच गए हैं तो हम ये निजात का जो काम है जो मेरे और आपके सुपुर्द किया गया है, सौंपा गया है, इसको मुसलसल करते रहें। लेकिन सबके अपनी अपनी जगह है ना। और कुछ जो हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि पतरस की जैसे मखतूनों में है, जैसे फर्ज करें जो मुझे खुदा ने ये दी है कि मैं जो पहले से मसीह में आ गए हैं उनको मजबूत करना है। मुझे पतरस की खिदमत जो है एक किस्म दी है, और मैंने ये गवाही में भी आपको सरैया को या सबको याद होगा कि ये जब ग्रुप शुरू किया तो खुदा ने मुझे ये खिदमत दी थी कि जिस तरह पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू खुद मजबूत होए तो अपने भाइयों को भी जाके मजबूत करना। हालेलुया। तो इसलिए मुझे एक क्लियर जैसे कह लें खुदा ने कलाम जो है या एक रोया जो है वो दी हुई है कि जो पहले मसीह में आ गए हुए हैं उनको मजबूत करना है। हालेलुया। और हम आपने भी अपने आप को देखना है कि खुदा ने आपको कौन सी रोया दी है, खुदा ने आपको कौन सी खिदमत दी है। कि पालूस रसूल की खिदमत दी है, पतरस की दी है तो आपको खुदा ने क्लियर बताया हुआ है कि आपको किन लोगों के लिए ज्यादा बोझ जो है वो फील होता है कि मैं इनके साथ बात करूं ये भी बच जाए, क्योंकि निजात की सबको जरूरत है ना। तो आपको ये पता है, और आप जरूर मेरे साथ या ग्रुप में शेयर करें कि खुदावंद ने आपको किस किस्म की बोझ जो है वो दिया है, ताकि आपको पता चले कि अ, मतलब आपको ये खुदा ने कहा हुआ है। तो सबकी फर्क फर्क है, और सबको खुदा ने काम कुछ ना कुछ दिया हुआ है। हालेलुया। कोई भी मसीह में आके वो फारिग नहीं बैठ सकता। हमें जो खिदमतें हैं वो दी हुई हैं, लेकिन आप अपनी अपनी खिदमत को देखें और काम करें। क्योंकि जिस तरह खुदावंद का बंदा यहाँ पे कह रहा है कि वो क्या है, खुदावंद की नजर में वो नजरें हैं या वो कुर्बानियां हैं जो हम चढ़ाते हैं। और खुदा के खादम या काहिन जो था उसका काम ही क्या था, और भी बहुत से काम थे, लेकिन वो क्या करता था, कुर्बानियां चढ़ाया जाता था। वो कुर्बानगा जो थी उसके ऊपर जब बनी इसराइल कौम जो थी वो लेके आती थी अपने अपने जैसे कह ले हदिये नजराने, और जो वो बर्रे थे या जो भी जानवर कुर्बानी के लिए के आते थे, तो वो उसके ऊपर कुर्बानगाह के ऊपर बेदी के ऊपर चढ़ाया करता था काहिन, है ना। तो वो आज हम देखते हैं कि वो दुआओं के जरिए हम खुदा के खादम जो हैं, या जिस तरह बाप है या अ, शौहर जो है वो चढ़ाता है अपनी फैमिली की तरफ से होके, है ना। तो इसी तरह ये भी यहाँ पे आके ये भी खुदा का खादम हमें बता रहा है कि जो हम रूहें बचाते हैं वो भी एक नजर की तरह है जो हम खुदावंद की हजूरी में चढ़ाते हैं। जिस तरह वो कुर्बानी जब खुदा का खादम चढ़ाता था तो उसकी खुशबू खुदावंद को पसंद आती थी। हालेलुया। तो इसी तरह आज मैं और आप भी दुआएं करें, अपने जो भी रूह इस वक्त आपको खुदा ने दी है, जिसके लिए भी इस वक्त आपके बच्चे हैं फर्ज करें, उनके लिए आप दुआएं करें, तो वो खुदावंद को पसंद है। खुदावंद
के लिए आप वो कुर्बानी की सूरत में या नज़र की सूरत में वो चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए और खुदावंद पाक रूह जो है उनको पाक कर रहा है या बना रहा है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद पाक रूह जो है हमें हमारे साथ उस हमारी जैसे कह लें खिदमत में, तैयारी में हमारी मदद जो है वो कर रहा है, उनको पाक बनाने में। अब जैसे कोई भी हम जब बात करते हैं उनसे या दुआएं करते हैं, तो वो जैसे हम रोमियो में 8 बाब में पढ़ा था, है ना? तो वो शफ़ायत कौन कर रहा है? हमारे अंदर से होके खुदावंद पाक रूह कर रहा है। और खुदावंद पाक रूह मुझे और आपको भी तैयार कर रहा है। इसी तरह वो जो रूहें हैं जिनको खुदावंद के लिए हम कह लें कि जीत रहे हैं, हमारी खुशखबरी की जो मनादी से बच रही हैं रूहें, खुदावंद को उनसे तस्कीन मिलती है। हालेलुया। इसलिए हम और ये जो खुदा का खादम होता है एक जगह कहाँ पे लिखा है कि यहीं पे, हाँ, और उन बातों में जो खुदा से मुतल्लिक है मसीह यस्सु के बायस फख्र कर सकता हूँ। हालेलुया। कि जो खुदावंद का खादम जैसे बाप या माँ अपने बच्चों के लिए जब दुआएं करते हैं और जब वो दुआएं कबूल होती हैं, वो मसीह के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, निजात पाते हैं, तो ये माँ बाप के लिए फख्र का बायस होते हैं, है ना? या काहिन है, पास्टर हैं, तो वो जब जब उनकी कलीसिया तैयार होती है या निजात पाती है, तो ये उस खादम के लिए या उस पास्टर के लिए फख्र का बायस बनता है ना? जिस तरह मैं कहूँगी कि अब जैसे जो रूहें मुझे दी गई हैं, जब आप मसीह में चलते हैं और वफ़ादारी से, ईमानदारी से खुदावंद के साथ चल रहे हैं और खुदावंद के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं, तो ये एक किस्म का मेरे लिए फ़ख्र का बायस है खुदावंद की नज़र में, है ना? खुदावंद या हमारा उस्ताद जैसे कह लें, हम सबका उस्ताद जो है खुदावंद यीशु मसीह, वो हमारा सरदार काहिम है, तो ये उसके लिए फ़ख्र का बायस है। उसके लिए एक कि मेरे लोग जिनको मैंने अपने लहू की कीमत दे के निजात दिलाई है, वो खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करें। हालेलुया! तो इसलिए हम अपने खुदावंद के यीशु मसीह को ऊँचा करते हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं या नेक काम करते हैं या खुदावंद के काम करते हैं, तो असल में हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हम ऊँचा कर रहे होते हैं। वो हमारे ऊपर फ़ख्र कर सकता है ना? या हम जो ये काम कर रहे हैं, निजात का जो काम खुदा के काहिन जो हैं या पास्टर जो हैं, वो करते हैं, या बाप या माँ अपने रूहानी बच्चों के लिए, तो ये उनके लिए फ़ख्र का बायस है। हालेलुया! इसलिए हम सब ही जहाँ कहीं भी आप हैं, आप ज़रूर जाँ-फ़शानी से अ, अपने खुदा के खादमों के लिए दुआ करें, और हम खुद भी जो कर रहे हैं ये काम खुशखबरी की मनादी जो है कर रहे हैं, हम अपने-अपने लिए भी दुआएँ करें। जिस तरह के खुदा उनका बंदा यहाँ पे कह रहा है कि वो खुद भी कर रहा है, लेकिन वो अ, अपनी कलीसिया को भी जैसे कह लें कि कह रहा है कि मेरे लिए दुआएँ करें। हालेलुया! इसलिए ज़रूर हम दुआएँ अपने खादमों के लिए ज़रूर करें, बजाए कि वो कुछ वो गलत हो गया उससे या कुछ वो ऐसा नहीं चल रहा, हम तनकीद ही करते रहें, कीड़े ही निकालते रहें, वो खुदा खुद उसका एक जैसे कह लें उससे हिसाब लेगा, या जो भी वो करेगा उसका बदला खुदावंद लेगा। जिस तरह मूसा ने जब उस कोशी औरत से शादी की थी, तो मरियम और हारून जो थे वो बोलना शुरू हो गए थे, लेकिन खुदावंद ने अपने खादम को, मूसा को कुछ नहीं कहा था। सज़ा किसको मिली थी? मरियम को मिली थी, है ना? उसको कोढ़ हो गया था। तो इसलिए हम अपने खादमों के बारे में, अपने बाप के बारे में, अपने शौहर के बारे में कुछ भी बुरा ना बोलें। अगर वो गलत भी कर रहे हैं, तो खुदावंद ही उनको जैसे कह लें ठीक करे, या अ, सीधे रास्ते पे लेके चले, या अपनी माफ़ी माँगे। मैं और आप उसके ऊपर उँगली ना उठाएँ। हालेलुया! खुदावंद ही
उसको समझाए और खुदावंद ही सही जो उसके फैसले हैं या खुदावंद के डर और खौफ में वो जिंदगी गुजारे। हालेलुया। इसलिए खुदावंद का खादम जो है मुझे और आपको उनके जो जज हैं वो नहीं बनाता, बल्कि किसी को भी हम जज नहीं करेंगे। जो जैसे शुरू से ही जब से ये बाइबल स्टडी शुरू हुई तो मैंने कहा है कि जो दुल्हन है वो अपने आप को जज करती है। जो दुल्हन के तौर पे तैयार हो रहे हैं वो किसी को जज नहीं करेंगे, वो अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को रोज रोज जज करेंगे। मेरे अंदर तो नहीं कुछ ऐसा, मेरे अभी कपड़ों पे ये वाला दाग तो नहीं है, ये उन दागों को हम धोएं। तो बाकी खुदावन जो है हमारे जो बच्चे हैं या बताना जरूर है, लेकिन हमने जैसे कह लें हर वक्त तनकीद जो है वो नहीं करते रहना, और हम अपने आप को भी तैयार करें और उनके लिए हम दुआएं करें जो हमें खुदावंद ने रूहें दी हैं। हालेलुया। फर्ज करें बच्चे हैं या माँ बाप हैं या बहन भाई हैं, कोई भी हैं, तो हम उनके लिए दुआ में ठहरे, रोजे रखें और हम खुदावंद के लिए ये कर रहे हैं, ये जो कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, है ना, ये खुदावंद के लिए। तो हम एक दो आयतें जो हैं ओह हमारा टाइम हो गया। अच्छा, बस एक दो आयतें पढ़ते हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि ये हम कुर्बानियां जो हैं वो चढ़ा रहे हैं, है ना। फिलिपियों 2:16 आयत पढ़ना अंजना। फिलिपियों 2 उसकी 16 आयत से पढ़ना, जिससे हमें पता जी। चलता है कि ये जो हम खिदमत करते हैं ये असल में खुदावन की नजर में क्या हम चढ़ा रहे हैं, हम कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਚਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, यहाँ पे भी खुदावन का बंदा कह रहा है ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो, है ना, कि मेरी जो दौड़ धूप है, यानी जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई दुआएं कर रहे हैं, जांफशानी से रोजे रख रहे हैं या खुदा का खादम, या जैसे मैं कह लो आपके लिए कर रही हूं, तो मेरी दौड़ धूप जो है या मेरी जो मेहनत है वो कारत नहीं गई। तो खुद जब मसीह का दिन आएगा तो मुझे फख्र होगा, या हम सभी जो हैं अगर तैयार होंगे तो हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो एक और हवाला हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13 उसकी 16 आयत। इब्रानियों 13 उसकी ਜੀ 16 ਪੜ੍ਹੀ। आयत। हाँ जी। ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨੋਂ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ जो हम ਆਪਣੀ ਜੀ जो भी भलाई के काम करते हैं, जो भी ये सखावत या दूसरों की मदद करते हैं, जिस तरह पालूस रसूल उसके आखिरी चैप्टर में हमने सॉरी ये रोमिया जो 15 बाब पढ़े हैं कि जो कलीसिया थी जो वो उसको जो भी हदिये नजराने देती थी, है ना, यानी मिशनरी काम के लिए, मनादी के काम के लिए, वो सारी कुर्बानियां थी, तो वो खुदावंद को पसंद है। इसीलिए इसलिए हमें खुदा के कदमों की मदद जो है ना सिर्फ दुआओं से बल्कि रुपए पैसे से भी करनी चाहिए। हालेलुया। और पहला पत्रस 2 उसकी 5 आयत। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, हम क्यों क्या क्या हैं, काहिन है। ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਜੀ हाँ जी, तो हम इन पत्थरों की मानद, हम कीमती पत्थर हैं, हमने मुकाशवा की किताब में सीखा था, है ना।
تو हम ये रूहानी घर जो हैं वो बनाते जा रहे हैं और ये कुर्बानियां जो हैं वो चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये खिदमतें जो हैं जो खुदा ने हमें दी हैं, उसी के जरिए से कह लें हम कीमती पत्थर बन रहे हैं खुदावंद के लिए, रूहानी घर बन रहे हैं। और ये जो कुछ भी हम चढ़ा रहे हैं हदिये नजराने, जैसे रूहें ये बचा रहे हैं, तो ये कुर्बानियां क्या हैं, खुदावंद के नजदीक मकबूल हैं या खुदावंद को ये पसंदीदा है। और एक और हवाला है फिलिपियों 4 बाब उसकी 18 आयत है ना, कि ये जो खुदा के खादमों की हम मदद करते हैं। फिलिपियों 4 बाब। ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਇਪਾਫੀਰੋਦੀਅਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਧੂਪ ਦੀ ਸੌਗੰਧ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। आमीन। हाँ जी, खुदावन को क्या है, इनकी वो उर्दू में लिखा है, वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। यानी ये जो हम खुदा के खादमों की मदद करते हैं, यानी कोई भी हदिया देते हैं, तो ये खुदावन को पसंद है। इसलिए हम अपना हाथ जो है वो ना रोके, जहाँ कहीं भी मनादी के काम के लिए जो जरूरत हो, दुआएं भी करें हम, और साथ इस तरह से भी उनकी मदद जो है जैसे करें। और हमारे चर्च में यानी तकरीबन ये होता है कि कोई भी मिशनरी काम के लिए जाता है, तो चर्च वाले जरूर उसकी यानी चर्च यानी पास्टर्स भी खुद भी करते हैं। और तकरीबन हमारे, मैं भूल गई हूँ सॉरी, 60-70 मुल्क हैं जहाँ पे मिशनरी काम जो है वो हो रहा है और चर्च उनकी मदद कर रहा है। इससे भी ज्यादा है, मुझे सही है, भूल गया है। तो वहां पे हर जैसे कह लें महीने जो है वो पैसे भेजे जाते हैं कि खुदा के खादमों को जो कि छोटे छोटे हैं, गरीब मुल्क हैं, तो वहां पे उस चर्च के लिए, या वहां पे जो बच्चे हैं या जो गरीब जैसे कह लें जिनके पास कोई कारोबार या कुछ, तो वो ये चर्च जो है वो शुरू करके देता है। और लोग जो हैं अलहदा से भी, अपने अलग अलग से भी जो मनादी करते हैं, मिशनरी काम जो है, उनके लिए मदद जो है वो करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये कहा, हमने क्या पढ़ा कि खुदावंद को ये कुर्बानी जो है, इसकी खुशबू जो है वो पसंदीदा है। हालेलुया। इसलिए हमने किसी के लिए नहीं करना, ये रूहें किसी के लिए नहीं बचानी, या कोई दुआएं करते हैं या हदिये नजराने जो हैं वो देते हैं, तो वो किसी के लिए नहीं है, उस खुदा के खादम के लिए नहीं है, बल्कि हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं, खुदावंद के लिए कर रहे हैं। क्योंकि खुदावंद को क्या है, ये कुर्बानियां पसंदीदा है। हालेलुया। इसलिए ये रूहें और जो नजरें हम चढ़ाते हैं वो खुदावंद के लिए कर रहे हैं। इसलिए ना हम सोचें कि ये खुदावंद का खादम जो है वो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, है ना। तो इसलिए हम खुदावंद के लिए ये सब कर रहे हैं। खुदावंद को नजरें ये पसंद है और उसकी खुशबू जैसे वो हमारे खुदावंद को पसंद है। तो खुदावंद आप सबको भी, जो जो आपकी खिदमत है, जहां जहां भी खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है, मतलब आपकी फैमिली में है, घर में है, अभी आप काम कर रहे हैं, या जैसे जावेद बाहर करता है, गैर कौमों में करता है, या सुरैया जैसे इसकी भी बाहर खिदमत है, तो आ, हम सबको जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये खुदावंद को पसंदीदा है। और खुदावंद हम सबको जोर दे, ताकत दे, हिम्मत दे, और हिकमत से हम खुदावंद के जोर से इस सारे काम को करते रहें, और ताकि खुदावंद की नजर में हम जो है मकबूल नजर, और हमारे जो हदिये नजराने हैं वो हम चढ़ाते रहें। हालेलुया। क्योंकि हम सभी क्या हैं, अब खुदा के काहिन हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और सबको क्लियर खुदावंद बताए कि उसकी क्या खिदमत है।
और खुदावंद उसको पूरी ईमानदारी से जाँफिशानी से करने की हम सबको ताकत दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद हम सबको इस्तेमाल करे। हम में से कोई भी जो है वो नकारा ना हो, काहिल ना हो, किसी में सुस्ती ना हो। हम सब पूरे जोश और खरोश से, जैसे पौलुस रसूल जोश से भरा रहता था, रूहानी जोश से। हालेलुया! मैंने दूसरा नहीं रूहानी जोश से भरा रहता था। तो हम भी रूहानी जोश से भरे रहें और जो भी मुझे और आपको खुदा ने खिदमत दी है, अपने बच्चों के लिए फर्ज करें, दुआ करें या अपने माँ बाप के लिए, तो वो पूरी जाँफिशानी से करें। रातों के पहरों को उठ-उठ के उनके लिए हम दुआएँ करें और रोज़े रखें और ताकि ये खुदावंद को जो हम कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, नज़रें चढ़ा रहे हैं, खुदावंद इनसे खुश होता है। हालेलुया! ये बात मुझे बड़ी ही अच्छी लगी जब ये मैंने पढ़ा कि खुदावंद को इससे तस्कीन मिलती है। सोचें जब हमें तस्कीन में तसल्ली मिलती है या हम कोई काम करते हैं, जैसे कुछ करके हमें बड़ी तसल्ली मिलती, तो कितना हम जोश से, खुशी से, शादमानी से भर जाते हैं। तो हम अपने खुदा को भी इसी तरह खुश करें। हालेलुया! और जो भी खुदा ने आपको खिदमत दी है, उससे हम खुदावंद को तस्कीन जो है वो देते रहें। प्रेज़ गॉड! हालेलुया! खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस कलाम के लिए, तेरी इन मीठी बातों के लिए, तेरे इस भेद के लिए कि खुदावंद तूने हमें इसलिए चुना है और ये नज़रें जो हम तेरी हुज़ूरी में चढ़ाते हैं, खुदावंद तुझे ये पसंद है। हालेलुया! खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ईमान है कि खुदावंद हम जितने भी इस वक़्त यहाँ पे मौजूद हैं, हम सबकी खिदमत है और हम सब तेरी अ अ, तेरे इस नज़रें जो हैं वो तेरी हुज़ूरी में चढ़ा रहे हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमने नहीं बल्कि खुदावंद तूने हमें चुन लिया, तूने गैर कौमों में से हमें निकाल लिया, तूने हमें ज़ोरावर बना दिया। हालेलुया! हम तेरी वजह से, तेरे ज़ोर से, तेरी ताकत से आज ज़बरदस्त हैं, आज ज़ोरावर हैं और आज हम दूसरों के लिए भी खुदावंद खुदा अपने हाथों को उठाते हैं। हम उनके लिए बेजाँफ़िशानी से दुआएँ करने वाले लोग Amen. हैं। Amen. दूसरों Praise के the Lord. लिए निजात का काम करने वाले लोग हैं। हालेलुया! यस लॉर्ड, Amen. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमें गिरे नहीं रहने दिया, तूने हमें Yes, Lord. जिनको कोई अक्ल नहीं, कोई समझ नहीं है, गैर कौमों में पड़ा नहीं रहने दिया। हालेलुया! खुदावंद तूने हमें निकाल लिया। ओह यस लॉर्ड, खुदावंद खुदा Praise. हमारे किसी अच्छे काम की वजह से नहीं बल्कि खुदावंद तेरे रहम की वजह से आज हम Amen. बचाए गए हैं। Amen. Praise और the Lord. खुदावंद तू जो है खुदावंदों का खुदा, तू पूरी दुनिया पर रहम करना चाहता है। तू खुदावंद Praise the खुदा तू सबको बचाना चाहता है। खुदावंद यीशु तूने सबके लिए जान दी है। तू किसी की Amen. हलाकत नहीं चाहता। हालेलुया! और खुदावंद तूने मुझे और हम सबको इस ग्रुप को तूने चुना कि हम ये निजात का कलाम, ये खुशी का, ये Praise, फज़ल का कलाम praise the लेके Lord. दुनिया तक जाएँ। दुनिया को बताएँ कि एक निजात दहिंदा है, जो हमें बचा सकता है, जो Amen. हमें Hallelujah. हमें निकाल सकता है, इन बंधनों से आज़ाद कर Praise the Lord. सकता है। Praise the Lord. हालेलुया! यस लॉर्ड, खुदावंद हम Praise तेरा the Lord. शुक्र करते Praise हैं। the Lord. आज हम दुनिया के पास Hallelujah. ये खुशखबरी की मनादी लेके जाते हैं। ओह यस लॉर्ड, खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ मैं ग्रुप Yes, के एक-एक Lord. Yes, मेंबर के Lord. ऊपर और ख़ास तौर पे जितने हम यहाँ पे मौजूद हैं। खुदावंद आज तेरा ख़ास मसा हम सब के ऊपर ठहर जाए Yes, कि okay, हम now. दूसरों के लिए खुदावंद खुदा निजात का बाइस बनते जाएँ, दूसरों को मजबूत करते जाएँ। Amen. पतरस का, पौलुस रसूल का मसा हमारे ऊपर ठहर जाए। यीशु के नाम से खुदावंद जिस तरह Yes, okay, now. पतरस अपने भाइयों को मजबूत करता था, मजबूत करने का बायस बना। आज हम भी खुदावंद जो ज़ोरावर हैं, अपने भाइयों को मजबूत करने का बायस बने, उनको Yes, गिराने का okay. खुदावंद बायस Yes, ना बने। okay, now. खुदावंद कहीं पे भी वो कुछ ऐसे गलत कर रहे हैं, तो खुदावंद हम उनके लिए दुआ में ठहरे, रोज़े में ठहरे, उनको उठा खड़ा करने का बायस बने। यीशु के नाम से खुदावंद हमारे दिलों में Hallelujah. ऐसी आग लगा दे खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। Amen.
कि हम सब मिलकर खुदाम जितने भी हम में से कमजोर हैं खुदाम उनको तेरी तरफ से जोर देने का बायस बने खुदाम यस्सु के नाम से उनको हौसला दे, उनको हिम्मत दे खुदाम उनको उठा खड़ा करें तेरे जोर से खुदाम तेरी ताकत से यस्सु के नाम से हम उनके लिए शिफायत करने वाले हों, उनके लिए दुआएं करने वाले लोग हों खुदा ना के उनके ऊपर उंगली उठाने वाले लोग हों खुदा हमारे ऊपर वो मस्सा उंडेल दे, अपनी मोहब्बत को उंडेल दे, जिस तरह पालूस रसूल कहता है कि मुझे उनके लिए अगर खून भी बहाना पड़े तो मैं तैयार हूँ खुदावंद। तो वही मसा खुदावंद आज मेरे ऊपर हमारे ग्रुप के ऊपर आ जाए कि हमें जितनी रूहें हैं जो हमारे रूहानी बच्चे हैं खुदावंद जब उनके लिए दुआ करें, जब उनके लिए रोजे रखें तो खुदावंद कहीं पे भी हमें उनके लिए लहू भी बहाना पड़े तो खुदावंद हम तैयार हो जाए खुदा हम डरे ना, हम घबराए ना, क्योंकि हमारे यस्सु ने हमें निजात देने के लिए अपनी जान दे दी, अपने लहू को बहा दिया खुदावंद। वही मजा आज इस ग्रुप के ऊपर मांगती हूँ खुदावंद, अपने ऊपर मांगती हूँ यस्सु के नाम से खुदा हम जान फिशानी से खुदा तेरे लिए काम करने वाले हों खुदावंद, अपने खादमों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बाप के लिए दुआएं करने वाले लोग, अपने बेटों के लिए खुदा अपनी बेटियों के लिए दुआएं करने वाले लोग हों, रोजे रखने वाले लोग हों, शफायत करने वाले हों, रात के पहरों में उठ उठ कर दुआएं करने वाले लोग हों, क्योंकि ये अब वक्त नहीं है कि हम सोए रहे हैं, हम सुस्ती में पड़े रहे हैं। ओ खुदावंद अब तेरे आने का वक्त नजदीक है खुदा तू चंद सेकंड की दूरी पे है खुदावंद, तू कभी भी किसी भी लम्हे आने वाला है, इसलिए हम नींद से जागे खुदा और खुदावंद अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खुदा गैर कौमों के लिए उठ खड़े हों खुदावंद, इब्लीस की कैद से उनको छुड़ा के ले आने वाले हों खुदावंद, उनके लिए रोजे रखने वाले हों, उनके लिए दुआएं करने वाले लोग खुदा बन जाएं खुदावंद यस्सु के नाम से खुदा और खुदावंद यीशु ये मसा खुदा हमसे खुदा किसी भी तरीके से शैतान छीनने ना पाए, हमेशा ये मसा तू हमारे ऊपर उंडेलता रहना खुदा यीशु के नाम से हम तुझसे जुड़े रहें, मजबूत बने रहें खुदा, जिस तरह तेरे कलाम जो डाली मुझसे जुड़ी रहेगी वो फल लेके आएगी खुदा, हम तुझ में जुड़े रहें ताकि हमें हिम्मत, ताकत, जोर मिलता रहे और खुदावंद हम बहुत सा फल लेके आने वाले, हमारे अंदर रूहानी फल और रूहानी नेमतें काम करना शुरू हो जाए हमारे ग्रुप में यीशु के नाम से खुदा, जो तेरी मोहब्बत है वो हमारे अंदर आ जाए, तेरी हलीमी, तेरी मेहरबानी हमारे अंदर आ जाए खुदा यीशु के नाम से खुदा, हम दूसरों के लिए खुदा उठ खड़े हों खुदा, हम सोए ना रहें खुदा यीशु के नाम से खुदा, बेदारी आ जाए खुदा हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में यीशु के नाम से खुदा ताकि खुदाम यीशु तू जो हमारा उस्ताद है, तू जो हमारा सरदार काहिन है खुदावंद, हम अ, हमारी जिंदगियों से खुदा तुझे फख्र हासिल हो खुदा तू बाप के सामने दलेरी के साथ बता सके कि ये मेरी लोग हैं, मेरी दुल्हन है खुदा यीशु जी, हालेलुया खुदावंद, हम तेरे लिए फख्र का बायस बने खुदा यीशु के नाम से खुदा यीशु हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, कभी भी तुझे हमारी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े, कभी भी दुश्मन की फौजें अबलीस हम पे हंसने ना पाए, हमारे यीशु पे हंसने ना पाए कि देखो इसके लोग गंदे काम कर रहे हैं, देखो इसके लोग हरामकारी में, जनाकारी में पड़े हुए हैं खुदावंद, हम तेरे लिए यीशु फख्र का बायस बने, हमारे ऊपर वो मसा उंडेल दे आज खुदावंद यीशु के नाम से। हम जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं एक एक के ऊपर खुदा वो तेरा मसा ठहर जाए खुदा, जहाँ कहीं भी हम अभी कमजोर हैं खुदावंद आज तेरा जोर हमारे ऊपर आ जाए खुदावंद, ईमान में मजबूत कर दे, वो पाक तरीन ईमान हमारे अंदर आ जाए खुदावंद, वो पाक तरीन मोहब्बत हमारे अंदर आ जाए खुदावंद, जो कि तेरा हुक्म है खुदावंद यीशु तूने फरमाया यूहन्ना की इंजील में कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, हालेलुया, जिस तरह यीशु ने मोहब्बत की खुदावंद वो पाक तरीन मोहब्बत हमारे अंदर आ जाए खुदा, वो तेरी हलीमी हमारे अंदर आ जाए खुदा यीशु
वो तेरी फरोतनी हमारे अंदर आ जाए यीशु के नाम से, वो तेरी पाकीज़गी हमारे अंदर आ जाए यीशु के नाम से, ताकि खुदा यीशु मसीह जब तू आए बादलों पे तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों, हम रहे हुए ना हों, हम उन 5 कवारियों में शामिल ना हों जिन जो पीछे रह गई, जो 10 कवारियां थी, हम उनमें नहीं, हम पाक दामन कमवारी हैं खुदा, हम जो सोते जागते उठते बैठते खुदा उसकी आंखें उसका दिल तेरी तरफ लगा हुआ है खुदा यीशु, हम हमारे ऊपर वो मस्सा उंडेल दे खुदा यीशु के नाम से, हम उस 5 कवारियां अक्लमंद कवारियों में शामिल नहीं होना चाहते खुदा, हम उस पाक दामन कवारी में शामिल होना चाहते हैं Amen. जो खुदावंद तू Yes, तेरी Lord. महबूबा है खुदा, और खुदावंद Yes, जो Lord. तेरी जो जिसका तू आशिक है खुदावंद, वो तेरी Praise the खुदावंद Lord. तेरी Praise the Lord. आशिक है खुदावंद, खुदा हम उसमें Praise the शामिल Lord. हो जाए, Yes, हम Lord. ऐसी Amen. मोहब्बत तुझसे करते हैं और करना Lord चाहते हैं, Jesus. हम इसमें मुसलसल Yes, Lord. बढ़ना चाहते हैं खुदावंद यीशु के नाम Amen. से, हम खुदावंद तेरी दोलन जो है हमारे कपड़ों पे कोई दाग कोई धब्बा कोई छुरी ना हो खुदावंद यीशु मसीह, अगर आज रात अगर इसी पल खुदावंद तू आए तो हम तैयार हों यीशु, तेरे लहू Amen. से धुले हुए हों खुदाम Amen. यीशु के नाम से, हम कवरिंग नहीं चाहते, Lord, सिर्फ yes, Lord. हम धुलना चाहते हैं खुदाम यीशु, हमारे जिस्म का एक एक सा खुदाम नस नस रग रग हमारी धुल जाए यीशु तेरे लहू से, ताकि हम Yes, पाक और Lord. साफ हो जाएं खुदा ओ खुदाम Amen. वो चमकदार लिबास हम पहन ले खुदाम यीशु के नाम से खुदाम, इस ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर खास तौर पे जितने हम यहाँ पे मौजूद हैं खुदा, इस वक्त तेरे कदमों में हम बैठे हुए हैं, वो चमकदार लिबास महीन कतानी लिबास हमें पहना दे खुदा, और वो जोर बख्श दे Yes, यीशु Lord. के नाम से, ताकि जब तू आए तो ये दुनिया ये कहीं कोई हमें पीछे ना खींचने पाए खुदाम, तेरी कुदरत से तेरे जोर से, जिस तरह खुदाम तुझे जो मौत है जो कब्र है वो होल्ड नहीं कर सकी थी, उसी तरह हमें वो होल्ड ना कर Praise the सके, Lord. हमें पीछे ना खींचने सके, Amen. यीशु के नाम से तेरे जोर से तेरी कुदरत से तेरी ताकत से हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों यीशु के नाम से खुदाम, यीशु के मैं नाम। जितने भी इस वक्त मौजूद हैं एक एक को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, पूरी पूरी फैमिली को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ यीशु के नाम से, Praise the Lord. Praise the Lord. तेरा Hallelujah. तेरा कुदरत वाला हाथ हमेशा हमारे ऊपर बड़ा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से, हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू, हालेलुया Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless हालेलुया you too, Ji. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज गॉड।